Hi guys, my name is Saili and welcome to my channel. This is my first video, so please be kind to me. This channel is going to be all about self-development, beating procrastination, building relations, and most importantly, programming your subconscious mind. Now, as you have read the title, you know this video is about procrastination, rather chronic procrastination. Now, I have been dealing with chronic procrastination for almost a decade, and rather, it took me a decade to realize that something like this is happening to me, because of which I have been losing all good opportunities, I've been losing money, I've been losing relations, mental stability, and everything which you need for a good, happy, secured life. Now, the problem is that we don't realize we are procrastinating. We just feel that we are being lazy, and one fine day will come where we'll just, we will just think we'll be very motivated that we are going to start and we are going to kill at that specific task which we have been not doing for a really long time. But that one day doesn't come. You just feel like someone is holding you just feel like things are there which you really love, but still you're not able to do it, and then you regret, you feel uh, angry on yourself, you feel sad, and then because you feel sad you again don't do that things, you don't do that things, that's why you become sad, and then the cycle goes on and on and on. So you could be at any stage of your procrastination, okay? You could be just procrastinating that one thing, like everything is going fine in your life, but just one thing you're procrastinating, like going to the gym or starting any new habit. Or you could be at in the extreme stage where you are not able to get out of the bed, only like you are not able to do anything. आप कोई भी स्टेज पे हो, प्लीज रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन, हमारे जैसे काफ़ी सारे हैं. ओके. सो द प्रॉब्लम इन दिस इज वी डोंट रियलाइज कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा गहरी है और हमारी कैपेसिटी कितनी है. हम खुद को बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि वी डोंट रियलाइज दैट ये जो हर दिन ना करने की आदत है वो अभी बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू जस्ट हैपन इन वन डे कि we'll start doing things. We don't realize those things. Okay. Now, the most important thing is that we realize what is procrastination. Okay. Procrastination is not being lazy. Okay. Procrastination is simply avoiding a discomfort behind that specific task which your brain is trying to protect you. Okay. आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो एक डिस्कम्फर्ट से जो वो स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड है. अभी वो डिस्कम्फर्ट का रीज़न कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी फियर, इट कुड बी एनजाइटी, इट कुड बी यू माइट बी थिंकिंग दैट आई डोंट नो हाउ टू डू इट, यू कुड बी थिंकिंग कि नहीं हो पाएगा मेरे से. कुछ भी रीज़न रह हो सकता है जो कि आपने कभी एनालाइज नहीं किया है, बट योर ब्रेन जस्ट नो कि ये बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग है, तो अभी आप ये मत करो, इसके जगह पे कुछ और करो. अभी इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. दिस हैपन्स विद मेनी टीनेजर्स आई फील कि कल के दिन आपका एग्ज़ाम है. ओके. एंड आपने पढ़ाई बहुत दिनों से की नहीं है, कुछ नहीं है, आज का ही बस एक दिन है. सो यू आर लाइक वेरी मच इन टू एन एनजाइटी कि अभी मेरा पोर्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, पता नहीं सब चीज़ें कैसी होंगी. यू आर वेरी टेंस्ड. तो अभी वो टेंशन में पढ़ाई तो होने नहीं वाली, इतने ज़्यादा टेंस्ड हो कि यू जस्ट फील योर ब्रेन टेल्स यू कि फॉरगेट इट, सब भूल जाओ, यू डू समथिंग एल्स. ओके. तो वो एनजाइटी दूर करने के लिए आप सोचते हो एक काम करते हैं कि मैं मेरा कबर्ड साफ करती हूँ या करता हूँ, जो भी है. ओके. एंड देन यू स्टार्ट क्लीनिंग अप योर वार्डरोब एंड ऑल दोज थिंग्स. अभी इसमें आप ये सोचो कि यू आर नॉट लेजी. ठीक है. इनफैक्ट पढ़ना एक इजी टास्क बोल सकते हैं कि जहाँ पे आपको बैठ के आपको खाली फोकस करना है, बट रादर यू आर चूजिंग टू डू अ फिजिकल टास्क जहाँ पे यू नीड टू फिजिकली क्लीन द थिंग्स, फिजिकली आपको कपड़े फोल्ड करके रखने हैं. तो आप वो टास्क करने को तैयार हो रादर देन सिटिंग एंड फोकसिंग. इनफैक्ट आपके मॉम ने आपको एक महीने से बोल के रखा रहेगा, रोज बोलती रहेंगी कि प्लीज क्लीन योर कबर्ड, क्लीन योर कबर्ड, बट तभी आपको सूझा नहीं. बट वो एक रात पे, एक दिन जब समथिंग एल्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, आप उस दिन ही ये सोच रहे हो कि मुझे ये करना है. तो इससे आप ये समझिए कि यू आर नॉट लेजी. ओके. कि आपको कुछ भी करना नहीं है, वो एक डिस्कम्फर्ट है, वो आपका ब्रेन का एक प्रोग्रामिंग है कि जो आपको बचा रहा है वो चीज़ करने से. तो अभी इस चीज़ पे सोल्यूशन क्या है? इस चीज़ पे सोल्यूशन ये है कि आप अपने ब्रेन को ट्रिक करो. ओके. सो
वॉट एवर इट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोकेस्टिनेट, आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन तो होगा, बिकॉज एनी टाइम यू आर प्रोकेस्टिनेटिंग इट्स नॉट एन इंस्टेंट डिसीजन। आपके दिमाग में एक हेजिटेशन चलता है कि करूँ या ना करूँ। आपका ब्रेन आपको कन्विंस करता है कि यू नो वॉट, दिस इज़ वेरी डिस्कम्फर्टिंग, क्या पता पोर्शन कंप्लीट होगा नहीं होगा, ये वो डिस्कशन चलता है। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि ठीक है मुझे अभी नहीं करना। तो उस डिस्कशन में आप क्या करो, यू नीड टू फर्स्ट रियलाइज कि कितने सारे स्टेप्स है, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हो, कि आप पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है, 10 चैप्टर्स है, तो 1 2 3 4 10 चैप्टर्स है। तो आप आपके ब्रेन को ये कन्विंस करो कि मैं बस एक ही चैप्टर करूँगा, ओके, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है। ओके, सो यू हैव टू जस्ट कन्विंस योर ब्रेन दैट आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस वन थिंग एंड आफ्टर दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। सब चल जो भी हो ठीक है देख लेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। अब इसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन एक अजम्पशन में रहता है कि ये तो कुछ करेगा ही नहीं, मुझे कुछ भी डिस्कम्फर्ट नहीं देखना पड़ेगा। आपका ब्रेन एक अजम्पशन में रहता है कि यू नो ये तो कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। बट जब आप वो एक छोटे से डिस्कम्फर्ट में जाते हो और आप वो चीज़ें करना लग जाते हो, तो आपका ब्रेन शॉक में चला जाता है कि अरे ये तो इतना ज़्यादा वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था, एंड यू गेट इन टू दैट प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन में प्रॉब्लम यही होता है कि आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते। नॉट लाइक कि यू हैव स्टार्टेड योर डूइंग थिंग्स एंड मिड वे आपने छोड़ दिया, स्टार्ट ही नहीं हो पाता। यू नो इट्स लाइक अ डोमिनो, ओके। अगर आपको डोमिनो पता रहेगा तो आपको खाली फर्स्ट डोमिनो पुश करना रहता है, उसके बाद सभी डोमिनोज एक के बाद एक गिरते जाते हैं। सो दिस प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑल्सो लाइक दैट, कि इसमें क्या प्रॉब्लम रहता है कि आपका जो फर्स्ट डोमिनो है ना वो बाकी डोमिनोज से काफ़ी दूर है। तो आपको वो डोमिनो पास लाना है एंड आपको पुश करना है, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको दे सकती हूँ, यू नो, इवन इफ देयर इज लाइक, आपको यू कैन से जिम जाना है, ओके, आप जिम नहीं जा पा रहे हो, जिम जाने, तो उसके पीछे क्या रीज़न रह सकता है, बहुत कुछ रीजंस रह सकते हैं। तो आप पहले वो रीज़न एनालाइज करो, एनालाइज योर ट्रिगर्स एंड देन ट्राई टू काम डाउन योर ट्रिगर्स। ओके, अभी हो सकता है कि आपको सुबह उठ के जाना पड़ रहा है, ओके, तो वो क्योंकि पूरे दिन में आपको टाइम नहीं है, तो सुबह आपसे उठा नहीं जा रहा है कि एक तो इतना सुबह उठो, उसके बाद यू नो get into your clothes and then go to the gym and then do a physical activity, the whole फीलिंग कि यू नो कैसा फील होने वाला है, उस वजह से आप उठ नहीं पा रहे हो। सो यू जस्ट टेल योर ब्रेन कि मैं बस उठूंगा, मैं कपड़े डालूंगा, मैं वापस से सो जाऊंगा। कन्विंस योर ब्रेन। तो आप ये खुशी में कि आपको उठ के वापस से सोना है, आप खुद को मोटिवेट कर लोगे और आप उठ जाओगे, आप कपड़े वपड़े डालोगे। एंड उतने टाइम में अगर आप कपड़े भी डाल लिए हो तो उसके बाद आपका मन हो ही जाएगा जाने का। एंड इवन दो वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस आपका नहीं भी हुआ, आप वापस भी सो गए, तो ये भी आप कंटिन्यू करते रहो। चार कि भाई ठीक है मेरे को उठना है, कपड़े डालना है, वापस से सोना है, एटलीस्ट आपने एक स्टेप तो लिया। यू नो आगे जाके आप और भी स्टेप्स ले सकते हो। सो यू नो वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट आउट योर प्रोकेस्टिनेशन, आप प्लीज़ ये समझो कि देर इज लाइक सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट विच योर ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फॉर, और आपको वो डिस्कम्फर्ट तोड़ना है, आपको उस डिस्कम्फर्ट से बाहर आना है। तो अचानक से पूरे के पूरे आप चेंज नहीं हो पाओगे, आपको एक स्टेप लेना है। एक स्टेप आप लोगे, आप पूरी तरीके से आगे चले जाओगे। देखो कैसा है हमारा जो ब्रेन है ना, इट फॉर आवर ब्रेन इट इज मोर इम्पोर्ट rather than it is more important to avoid discomfort than to seek pleasure। ओके, अभी आपका ब्रेन ये नहीं सोच रहा है कि चलो आज पढ़ लेते हैं, कल मैं पढ़ने की वजह से पास हो जाऊंगा, पास तो हो जाऊंगा, प्लेजर वही पास होने का बाद में मिलेगा। तो वो प्लेजर के बारे में इट डजंट केयर, उनको ये रहता है कि मेरे को अभी डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए। क्योंकि यू नो जैसे अ मैन हैज़ इवॉल्व्ड, यू नो, फ्रॉम यू नो यू कैन से स्टोन एज और वॉट एवर, हमारा ब्रेन का मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोग्रामिंग ही ऐसे हुआ है कि वी हैव बॉर्न नॉट टू सीक प्लेजर बट टू अवॉइड ट्रबल्स। ओके, जैसे ही स्टोनेज के टाइम में रहते थे, उसके बाद भी जो जैसे जैसे इवॉल्वमेंट हुआ है, तो उस टाइम पे कुछ प्लेजर नहीं होता था, योर लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड यू जस्ट हैड टू सर्वाइव एंड अवॉइड डिफिकल्टीज। तो वैसे ही अभी हमारा ब्रेन वैसे ही है कि इट इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस। क्या बुरी चीज़ें हैं वो नहीं करना है, बट बाद में कुछ अच्छा मिलेगा उसके लिए अभी कुछ करते हैं। उसके लिए आपको खुद को प्रोग्राम करना पड़ता है, उसके लिए आपको खुद को कन्विंस करना पड़ता है।
Okay, so this is something which really helped me literally to make this video. I have been procrastinating for a really long time, but मैंने सोचा कि मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि मैं तैयार हो जाती हूँ. ओके, मैं तैयार वैयार होके कपड़े पहन के बैठ जाती हूँ. दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप. माई सेकेंड स्टेप वॉज लेट मी सी कैसा वीडियो होता है, क्या होता है, लेट मी एटलीस्ट रिकॉर्ड. ओके, सो जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप. जब आप एक प्रोसेस में घुस जाते हो तो उसके बाद वो प्रोसेस करना बहुत ईजी हो जाता है. ओके, so yeah, that's it for this video, and let me know if this video was helpful to you. It was helpful for me, and for more such content please subscribe to my channel. Bye.